فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ آسان سادہ ترجمہ یہ ہے لوگوں، تمہارے پاس نور آیا ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ آیا ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ برہان آیا ہے، آئی ہے۔ برہان کے آنے کا ذکر ہے۔ آیت میں برہان کے آنے کا ذکر ہے، اسے کہتے ہیں آیت برہان۔ تو آیت برہان میں برہان کے آنے کا ذکر ہے، اور آیت نور میں نور کے آنے کا ذکر ہے۔ آنے کا ذکر ہے۔ تیسری آیت لقد جاءکم رسول، یہاں یہ ہے آیت رسالت، اس میں رسول کے آنے کا ذکر ہے۔ قد جاءکم الحق، یہاں حق کے آنے کا ذکر ہے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے، میں اور بھی آیات پڑھ سکتا ہوں جن میں آنے کا ذکر ہے۔ کیا ہے؟ آنے کا ذکر ہے۔ دیکھیے گا ہمارے موبائل پہ ایک میسج آئے، جب ہمارے موبائل پہ میسج آتا ہے فوراً ہم دیکھتے ہیں بھیجا کس نے ہے۔ ہمارے موبائل پہ کیا آئے؟ میسج آئے، فوراً ہم دیکھتے ہیں یہ میسج کس نے بھیجا ہے۔ آیت نور میں آیا، آیت نور میں نور آیا، آیت برہان میں برہان آیا، آیت رسالت میں رسول آیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نور بھیجا کس نے ہے؟ یہ نور بھیجا کس نے ہے؟ یہ برہان بھیجی کس نے ہے؟ یہ رسول بھیجا کس نے ہے؟ بس یہی تقریر کا اہم مڈ یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پوری تقریر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارے پاس میسج آئے تو دیکھتے ہیں کہ یہ میسج بھیجا کس نے ہے۔ آیت نور میں نور کے آنے کا ذکر ہے۔ نور آیا، نور آیا، بھیجا کس نے؟ آیت برہان میں برہان کے آنے کا ذکر ہے، یہ برہان بھیجی کس نے ہے۔ آیت رسالت میں رسول کے آنے کا ذکر ہے، یہ رسول بھیجا کس نے ہے۔ آیت حق میں حق کے آنے کا ذکر ہے، یہ حق بھیجا کس نے ہے۔ بڑا سادہ سا جواب قرآن دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے آیت نور میں نور بیچنے والا رب کی ذات ہے، آیت برہان میں برہان بیچنے والا رب کی ذات ہے، آیت رسالت میں رسول کو بیچنے والا رب کی ذات ہے، آیت حق میں حق کو بیچنے والا رب کی ذات ہے۔ پتہ چلا یہ نور کسی اور نے نہیں بیچا ہے، یہ رب نے بیچا ہے۔ پتہ چلا یہ برہان کسی اور نے نہیں بیچی ہے، یہ رب نے بیچی ہے۔ پتہ چلا یہ رسول کسی اور نے نہیں بیچا ہے، رب نے بیچا ہے۔ پتہ چلا یہ حق کسی اور نے نہیں بیچا ہے، رب کائنات نے بیچا ہے۔ بس سمجھ لو جب رب کسی کو بیچتا ہے عام سادہ بنا کے نہیں بیچتا، بڑا با کمال بنا کے بیچتا ہے۔ بڑا با کمال۔ جب رب کسی کو بیچتا ہے تو بڑا با کمال بنا کے بیچتا ہے۔ ہم کسی کو بیچے نا تو ہم اپنی طاقت کے مطابق اسے سنوار کر بیچتے ہیں، اسے بہت کچھ دے کر بیچتے ہیں۔ اور جب رب کسی کو بیچتا ہے نا، ٹھہریے گا میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سورہ فیل پڑھی آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فیل۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل،
अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसला। लफ्ज क्या आया है? अरसला। इसका क्या माना है? उसने भेजा। उसने, यहां भेजने का जिक्र है। किसने भेजा? अरसला, रब ने भेजा। किसने? रब ने भेजा। रब ने भेजा। किनको भेजा? वरसला अलैहिम तैरन अबाबील, छोटे छोटे परिंदों को भेजा। किनको भेजा? भाई छोटे छोटे परिंदों को उसने भेजा, जिन परिंदों का नाम है अबाबील। क्या नाम है? अबाबील। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, अपनी चूंज से, अपने पंजों से वो छोटी छोटी कंकरियां फेंकते हैं। वो परिंदे क्या करते हैं? हिजारा, भी हिजारा, छोटी कंकरियां। क्या? छोटी कंकरियां। ये कितनी को बड़ी कंकर थी? उलमा ने लिखा मसूर की दाल के दाने के बराबर। कितनी जी? चने के बराबर लगा लो। सफेद चना काला चना नहीं होता, इतने इतने ये पत्थर हैं। और परिंदों ने अपनी चूंज में या पंजों में उठाए हुए हैं। अब अबाबील खुद से थोड़ा इतना सा परिंदा है। जो परिंदा इतना सा है उसकी चूंज उससे भी छोटी। उस चूंज में जो पत्थर होगा वो उससे भी छोटा। लेकिन इस पत्थर में ताकत कितनी थी? इस पत्थर में ताकत कितनी थी? कभी तफसीर पढ़ के देखें। उलमा ने तफसीर में लिखा है ये पत्थर ऊपर से आता, हाथी पर जो फौजी बैठा होता उसके दिमाग में लगता, वो छोटा सा पत्थर उसके दिमाग में लगता, उसके जिस्म को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता। अब वो फौजी जिस हाथी पर बैठा होता, वो कंकर जो है, वो पत्थर जो है, उस हाथी के अंदर से निकलता। उसका इतना बड़ा पेट चीरते हुए जमीन को लगता, जमीन में जाके गड़ा कर देता। ये तफसीरों में लिखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूं, दाल के दाने के बराबर हो या चने के दाने के बराबर एक पत्थर हो, उस पत्थर के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई कि वो बंदे को चीर देता है, हाथी को फोड़ देता है, जमीन को चीर देता है। छोटे से पत्थर के अंदर जो है ये ताकत कहां से आ गई? मैं कहता हूं ये ताकत कहां से आ गई? आप कहोगे हजरत साहब ये वो पत्थर है, ये कोई आम पत्थर नहीं है। ये वो पत्थर है जिस पत्थर को रब ने भेजा है। जिस पत्थर को रब ने भेजा है उस पत्थर के अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि बंदे को लगे, बंदे को चीर दे, हाथी को लगे, हाथी को चीर दे, जमीन को लगे, जमीन के सीने में गड़ा कर दे। मैं पूछता हूँ मौलाना ये पत्थर कहां से आया है? तुम कहोगे रब ने भेजा है। इन पत्थरों को रब ने भेजा है, इन पत्थरों को रब ने भेजा है। भाई मसला हल हो गया। जिस पत्थर को रब भेजे वो पत्थर जो है इतनी ताकत वाला है, तो जिस आमना के लाल को उसने भेजा है वो आमना का लाल कितनी ताकत वाला होगा? बात समझ में आई आपको? ये कुरानी इस्तदलाल है, कुरानी इस्तदलाल है। वरसलालिम तैरन अबाबील, वो परिंदों को बेचता है, वो परिंदों को बेचता है। और तैरन अबाबील छोटे छोटे परिंदे हैं। भाई ये तकाबुल देखो, वो छोटा परिंदा बेचता है, बड़े लश्कर को तबाह कर देता है। छोटा परिंदा भेजे इतनी ताकत देता है, सबसे बड़ा रसूल भेजे। छोटा परिंदा, छोटा परिंदा जब छोटे परिंदे को भेजे, परिंदे की क्या हैसियत है? जब परिंदे को भेजता है इतनी ताकत देता है, इतनी ताकत देता है।
تو جب سب سے بڑے رسول کو اس نے بھیجا، سب سے بڑے رسول کو، سب سے بڑے رسول کو جب اس نے بھیجا، آپ اندازہ کریں وہ کتنا با کمال اس نے بنا کے بھیجا ہوگا۔ پھر آپ اس بات پہ بھی غور کریں، چھوٹا سا پتھر اتنا نقصان پہنچاتا ہے۔ عام ادھر پتھر اٹھائیں، وہ کسی کو مارے تو کیا ہوگا؟ چنے کے برابر کو پتھر اٹھا کر، میں نکتہ سمجھانے لگا تو وہ جو چاہتا ہوں بھئی، ایک پتھر چھوٹا سا چنے کے برابر اٹھا کے کسی کو مارے کیا نقصان کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن جو پتھر وہ بھیجے وہ عام پتھروں کی طرح نہیں رہتا۔ نہیں توجہ ہوئی؟ جس پتھر کو وہ بھیجے وہ عام پتھروں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ عام پتھر جو ہے وہ نقصان اتنا نہیں پہنچا سکتے، لیکن جس پتھر کو وہ بھیجتا ہے وہ بندہ چیر دیتا ہے، وہ ہاتھی پھوڑ دیتا ہے، وہ زمین میں گڑا کر دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا جس پتھر کو وہ بھیجے وہ پتھر عام پتھر کی طرح نہیں ہے، تو جس سب سے بڑے رسول کو اس نے بھیجا کیا وہ عام بندوں کی طرح ہوگا؟ بھائی جس پتھر کو بھیجے وہ پتھر عام پتھروں کی طرح نہیں رہتا، وہ پتھر عام پتھروں کی طرح نہیں رہتا۔ تو پتھروں کو بھیجے پتھر بے مثل ہو جاتے ہیں، پتھروں کو بھیجے تو پتھر بے مثل ہو جاتے ہیں۔ تو جس آمنہ کے لال کو اس نے بھیجا وہ ہماری طرح وہ بے مثل ہے۔ وہ کیا ہے؟ بولو بولو کیا ہے؟ بے مثل ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا، یہی سورہ فیل پڑھ کے دیکھنا، وہ پرندہ جب ہوا میں پتھر پھینکتا تھا تو کوئی پتھر ضائع نہیں جاتا تھا، اپنے نشانے پہ لگتا تھا۔ کیا؟ اپنے نشانے پہ لگتا تھا۔ وہ پرندہ خطا نہیں کرتا تھا نشانہ مارنے میں۔ وہ پرندہ جب پتھر پھینکتا اس کا پھینکا ہوا پتھر خطا نہیں کرتا تھا، جا کے لگتا تھا۔ تو جس پرندے کو بھیجے، جس پتھر کو بھیجے وہ خطا سے پاک، وہ خطا سے وہ پاک۔ تو پتھر خطا نہ کرے، وہ بے خطا ہو جائیں۔ تو جس رسول کو اس نے بھیجا، اسی سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی معصوم ہیں، خطا کر سکتے ہی نہیں ہیں۔ بس نکتہ میں نے یہ سمجھانا تھا کہ جب رب کسی کو بھیجتا ہے تو بڑا باکمال بنا کر ٹھہری گا۔ سورہ مریم پڑھتے ہیں، کیا سورہ مریم پڑھتے ہیں، تو جو ہے آپ کی فرمایا فَأَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجا، رب فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، فرمایا ہم نے مریم کی طرف اپنے روح الامین کو بھیجا۔ یہاں بھیجنے کا ذکر ہے، بولے بولے یہاں پہ بھی بھیجنے کا کیا ہے؟ ذکر ہے۔ کس نے بھیجا؟ رب نے بھیجا۔ کس کی طرف بھیجا؟ مریم کی طرف بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ اپنے روح الامین کو بھیجا۔ تو رب مریم کی طرف اپنے روح الامین کو بھیجتا ہے۔ کس نے بھیجا؟ رب نے۔ کس کو بھیجا؟ روح الامین کو۔ تو رب نے روح الامین کو بھیجا نا، پہلا کمال یہ آیا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ روح الامین بشر ہے یا نور ہے؟ بولو نا۔ روح الامین حضرت جبریل نور نے کہ بشر نے؟ بولے بولے کیا ہے؟ نور ہے۔ جب اس نور کو رب بھیجتا ہے، اس نور کو رب بھیجتا ہے، اس نور کو رب بھیجتا ہے، تو پہلا کمال یہ ہے کہ وہ نور بشر بن جاتا ہے۔ وہ نور بشر بن جاتا ہے۔
पता चला जिसे रब भेजे उसमें ये भी कमाल होता है, नूर हो तो बशर बन जाता है, बशर हो तो नूर बन जाता है। तो जो है आपकी, ये मैं अपने अकीदे आपके सामने पेश कर रहा हूं। शायद आप तरन्नुम सुनने के आदी हैं, आप बात को समझें, आप बात को समझे सही। भाई रब जिसे भेजे उसने अपने फरिश्ते जिब्रील को जो कि नूर है उसको भेजा। उसमें पहला कमाल ये आता है कि वो फतमस्सल लहा बशरन सविया, वो एक बशर बन जाते हैं। नूर से बशर, बशर से नूर, नूर से बशर। रौला खत्म होया कि नहीं होया? इस वास्ते असी कहने साडे महबूब नूर भी ने ते खैरुल बशर भी ने, नूर भी ने ते खैरुल बशर भी ने, नूर भी ने ते खैरुल बशर भी ने। पता चलिया जड़ा नूर होवे बशर बन सकता है, बशर बन सकता है। तो जिसे रब भेजे उसमें पहला कमाल ये है, नूर हो तो बशर बन जाता है, बशर हो तो नूर बन जाता है। अब बशर बन के बीबी मरियम के सामने जब हजरत जिब्रील आए ना, तो जो चाहता हूं तो बीबी मरियम जो है ना वो खौफ ज़दा हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? खौफ ज़दा हो जाती हैं और कहती है क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्ता तक़िया, मैं रब की पनाह चाहती हूँ, मैं रब की पनाह चाहती हूँ। हज़रत जिब्रील ने पता क्या कहा, सुनिएगा, फरमाया आना रसूल रब्बी की, मैं तो तुम्हारे रब का भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ, तुम्हारे रब का भेजा हुआ है क्या हूँ? फरिश्ता हूँ। बीबी मरियम ने सवाल किया क्यों आए हो, रब ने तुम्हें क्यों भेजा है, रब ने तुम्हें क्यों भेजा है? तुम कहते हो मुझे रब ने भेजा है, तो रब ने तुझे क्यों भेजा है? इसका जवाब कुरान से सुनिए। हज़रत जिब्रील ने पता क्या कहा? कहा ली आहाबा लाकी गुलामन जकिया, मुझे रब ने इसलिए भेजा है कि तुझे पुत्र अता करूं। नहीं समझे बात को? मुझे रब ने इसलिए भेजा है कि तुम्हें क्या दूं? गुलामन जकिया, साफ सुथरा तुम्हें बेटा अता करूं, साफ सुथरा बेटा अता करूं। वो पता ये चलिया जिन्हों रब भेजे ओनू इन्नी ताकत देंदा है जिन्हों चाहे पुत्र अता फरमावे, जिसको चाहे बेटा अता करे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो आपने देखा कि रब जिसे भेजता है उसमें इतना कमाल आ जाता है, वो नूर से बशर बन जाता है। रब जिसे भेजे उसमें ये कमाल आ जाता है कि वो जिसे चाहे बेटा अता करे, बेटा अता करे। फिर जब हज़रत बीबी मरियम की तरफ बेटा हुआ ना, तो बेटा हुआ। पूरा कुरान में नक्शा पेश कर रहा हूँ। फ़अतत बिही कौमहा तहमिलुहु, बीबी मरियम ने अपने बेटे को उठाया, तहमिलुहु कौम के पास लेकर आई, उठाया हुआ था अपनी गोद में, अपने बेटे को उठाया हुआ था। बिन बाप के ये बच्चा पैदा हुआ था, तो बिन बाप के जब हजरत ईसा पैदा हुए, फ़अतत बिही कौमहा, हजरत मरियम हजरत ईसा को उठाकर अपनी गोद में अपनी कौम के पास जब लेके आए, तो उन्होंने जब देखा मरियम तो कुंवारी थी, इसकी तो शादी नहीं हुई है, इसको तो किसी बशर ने छुआ नहीं है, तो ये बेटा जो है वो कहां से आ गया है। उन्होंने तरह तरह के इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। कहा मरियम ये बेटा कहां से ले आई हो, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई है, बगैर शादी के जो है वो बच्चा पैदा नहीं हो सकता है, तो ये बेटा कहां से ले आई हो। उन्होंने तरह तरह के एतराज़ात जो है वो करना शुरू कर दिए। तो बीबी मरियम ने जबान से कुछ ना कहा, जबान से कुछ नहीं बोला। पता कुरान क्या कहता है? फ़अशारत इलैहि, फ़अशारत, बीबी मरियम ने जबान से कुछ नहीं कहा। कहा यहूदियों, एतराज करने वालों, मुझ पर इल्जामात लगाने वालों, मुझसे ना पूछो, मेरे इस लाल से पूछो।
शान मुस्तफा। फअशारत इलैहि। कुरान में अभी तक कुरान से बाहर नहीं गया, कुरान समझिएगा भाई। बीबी मरियम पर जब उन्होंने इतराज किया कि ये बेटा कहां से ले आई हो, तो बीबी मरियम का हक बनता था, खुद बोलती, खुद कहती कि ये अल्लाह ने दिया है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। लेकिन बीबी मरियम बोली नहीं। फअशारत इलैहि, इशारा किया, इलैहि, गोद में जो बेटा उठाया हुआ था ना, इस तरह बेटा उठाया हुआ था, तो इशारा किया, अपनी उंगली से इशारा किया। सामने इतराज करने वाले थे, उन्हें कहा, उन्हें जवाब जबान से कुछ नहीं दिया। फअशारत इलैहि, कहा जो कुछ पूछना है इससे पूछो। हाले उम्र सिर्फ 3 दिन दी है। उम्र कितनी है भाई? 3 दिन दे बच्चे बोलते ने, 3 दिनों के बच्चे जवाब देंगे ने? बोलो बोलो, कभी वेख्या जाए इंदा बच्चा जो 3 दिनों का होवे ते सवालों दे की दवे जवाब दवे। अच्छा मैं तो रोकना चाहना, ये बीबी मरियम नू किवें पता सी कि ये मेरे पुत्र को जो कुछ पूछन दे हर सवाल का जवाब देगा? पहले तो ये वंड कटोना तुसी भाई। बीबी मरियम नू ये किवें पता सी कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ जो कुछ पूछोगे हर सवाल का जवाब, हर 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 3 दिन की उम्र है। इल्मे कुल्ली, इल्मे कुल्ली भाई। नबी 3 दिन के हो तो इल्मे कुल्ली, सिर्फ 3 दिन दे हो तो इल्मे कुल्ली, हर सवाल का जवाब, हर सवाल का जवाब। अच्छा मैं बात ये अर्ज करना चाहता था, बीबी मरियम को ये कैसे यकीन हुआ कि मेरा पुत्र जो कुछ पूछोगे, जो कुछ मेरे पुत्र को जो कुछ पूछोगे हर सवाल का जवाब देगा? ये बीबी मरियम को यकीन कैसे हो गया? इसका मतलब है बाबा जी, इसका मतलब है वे नबी तो नबी, अल्लाह नबी की माँ को भी इल्मे गैब अता फरमा देता है। दुनिया में कोई माँ कह सकती है कि 3 दिन का पुत्र है मेरा, तो पूछो जो पूछना है। इसका मतलब है कि अल्लाह नबी के माँ को भी इल्मे गैब अता फरमा देता है। उन्हें पता चल जाता है मेरा पुत्र कोई आम पुत्र नहीं है, बेमिसाल है, कि ये बेमिसाल है। इस वजह दे नाल बीबी मरियम ने इशारा कीता। की कीता? इशारा। ये इशारा नहीं समझते, इशारा होता क्या है? कभी इशारा समझा है? इशारा किसको बोलते हैं? इशारा फलसफे की एक तारीफ है। इशारा एक वहमी लकीर को कहते हैं। किसको? वहमी, यानी वहमी का मतलब है जो नजर ना आए, जो सराहत से ना हो, वहम में हो। मैंने ये हजरत साहब की तरफ ऐसी उंगली की है तो इसमें से लकीर निकलती को नजर आ रही? तो बोलो, उंगली का इशारा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक लकीर निकली है जड़ी हजरत साहब नू लगी है, लेकिन वहमी लकीर है जो नजर नहीं आती है। तो वहमी लकीर को इशारा कहते हैं। बस तवज्जो ये चाहता हूं, जब मेरे नबी ने चांद की तरफ इशारा किया, मेरे नबी ने चांद की तरफ इशारा किया, उन्हें हाथ से नहीं सुना उत्ते गया, सिर्फ इशारा किया, उंगली से एक वहमी लकीर निकली, वहमी लकीर निकली। उस वहमी लकीर ने जाके चांद के 2 टोटे कर दिए। भाई तवज्जो नहीं है भाई, जिस नबी की वहमी लकीर में इतनी ताकत है,
जिस नबी की वाहमी लकीर में जो लकीर नजर नहीं आती है, उस लकीर के अंदर इतनी ताकत है कि चांद के दो टोटे कर दे। बस अंदाजा करो, जिस उंगली से निकली हुई लकीर में इतनी ताकत है, उस नबी की उंगली में कितनी ताकत होगी। इसको इशारा कहते हैं। इशारा बीबी मरियम ने एक वहमी लकीर से अपने बेटे की तरफ क्या किया? क्या किया? इशारा किया। आपने इशारा करके उन्हां नू गोया फरमाया, जो कुछ पूछना जे मेरे इस पुत्र नू पूछो। एक कुरान है भाई, कुरान है। तुसी ते शेरो शायरी सुनते हो ना, कभी कुरान सुनो। फाशारत इलैही, इशारा किया, फरमाया पूछो जो पूछना है, पूछो जो पूछना है, मेरे इस बेटे से पूछो। अगो ने जवाब पता कीजिए, कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया। काम 3 दिन का बच्चा है, इहदे नाल असीं किवें गल्लां बातां कर सकने हैं? जो बच्चा अभी गोद में है, जो अभी पंगूड़े में है, गोद में है, उस बच्चे से हम कैसे पूछे? भाई 3 दिन के बच्चों से भी कोई बात होती है? वो कहने लगे मरियम को 3 दिन के बच्चे भी बोलती है। जब ये बात उन्होंने कही ना, काला, हजरत ईसा बोल पड़े। हजरत ईसा बोल पड़े। पता क्या फरमाया? इन्नी अब्दुल्लाही, मैं अल्लाह का बंदा हूं। सुभान अल्लाह। इस मकाम पे जब पहुंचा ना मैं हजरत, मैंने बड़ा सोचा। महल ये था कि उन्होंने एतराज किया था, बीबी मरियम पर इल्जामात लगाए थे। अब हजरत ईसा सबसे पहले उन्हें चाहिए था कि अपनी मां से इल्जामात उठाते। एक तो अपनी मां से इल्जामात उठाते सबसे पहले, लेकिन आपने सबसे पहले कहा इन्नी अब्दुल्ला ही। क्या? इन्नी अब्दुल्ला ही, मैं अल्लाह का बंदा हूं। सुनिएगा, तवज्जो चाहता हूं, बहुत अहम नुक्ता है, तवज्जो। ये नुक्ते ऐसे हासिल नहीं होते, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और अगर सामीन पर तवज्जो ना करे तो मेहनत ज़ाया हो जाती है। आप समझिएगा, सबसे पहले इन्नी अब्दुल्ला कहा, माँ पर लगे हुए इल्ज़ामात, एतराज़ात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि निगाहे ईसा समझती थी ये इल्ज़ामात ये छोटे हैं, इससे भी बड़ा ये काम आगे जाकर मेरी ही कौम आगे जाकर बल्कि क़यामत तक हजरत ईसा की निगाह देख रही थी। क्या देख रही थी? कि मेरी कौम आगे जाकर जो है मुझे अल्लाह बनाएगी, इब्नुल्लाह बनाएगी, मुझे इब्नुल्लाह कहेगी। क़यामत तक के ईसाई जो है वो मुझे इब्नुल्लाह कहेंगे। तो माँ की गोद के अंदर ही 3 दिन की उम्र में क़यामत तक निगाह जा रही है। सारे ईसाइयों को जवाब दे रहे हैं, क़यामत तक के ईसाइयों को जवाब दे दिया। माँ की गोद में 3 दिन की उम्र में गोया फरमाया, क़यामत तक के ईसाइयों, मैं इब्नुल्लाह नहीं, मैं अब्दुल्लाह हूँ। मैं अल्लाह का बेटा नहीं, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आपको पता है ईसाइयों का अकीदा क्या है? ईसाइयों का अकीदा पता क्या है? वो हजरत ईसा को इब्नुल्लाह कहते हैं। क्या कहते हैं? इब्नुल्लाह। शिरक है ये, माज़अल्लाह, ये शिरक है, सरी शिरक है। कुल हुवल्लाह पढ़ते हैं आप,
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। ये जो लफ्ज़ लम यलिद इसका माना है अल्लाह ने कोई बेटा बेटी कोई पैदा नहीं की थी अपनी। तो वो हज़रत ईसा को क्या बना रहे थे? इब्नुल्लाह। और क़यामत तक आने वाले ईसाइयों का आज भी यही नज़रिया है। तो इसका मतलब की निकलिया कि 3 दिन की उम्र से हज़रत ईसा की निगाह वेख दी भी क़यामत तक आने वाले साई मुझे इब्नुल्लाह कहेंगे। वाह। तो माँ की गोद में ही जवाब दे दिया। क़यामत तक आने वाले ईसाइयों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, मैं इब्नुल्लाह नहीं, मैं तो अब्दुल्ला हूँ। सुभान अल्लाह। मैं क्या हूँ? अब्दुल्ला हूँ। तो भाई जिस ईसा की निगाह बचपन में क़यामत तक को देख रही है, वो भी 3 दिन की उम्र में, क्या बोलो बोलो कितनी? 3। भाई 3 दिन की उम्र में माँ की गोद में रहकर हजरत ईसा की निगाह जो है वो क़यामत तक जाती है। तो जब जनाब ईसा की निगाह का ये आलम है तो हबीबुल्लाह की निगाह का क्या आलम होगा? अल्लाह। बात को समझ आई आपको? भाई नुक्ता मैं ये समझा रहा था, जब अल्लाह किसी को भेजे, सुभान अल्लाह, क्या जब अल्लाह किसी को भेजता है तो बड़ा बाकमाल बनाकर, उसने जब अपने महबूब को भेजा ना, उसने नूर बना के भेजा। क्या बना के भेजा? बोलो बोलो, क्या बना के भेजा? नूर बनाकर भेजा। आयत नूर है कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। क्या आयत करीमा है? कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सुनिएगा, तवज्जो चाहता हूँ। फरमाया लोगों तुम्हारे पास नूर आया है। क्या आया है? नूर। नूर आया है। फिर बोलिएगा क्या आया है? सवाल यह है ये नूर कहाँ से आया है? नहीं बात समझे? मैं आपके पास आया हूं कि मैं गायब हूं? आया हूं ना जी। आप मुझसे पूछ सकते हैं हज़रत साहब आप कहाँ से आए हैं? सुभान अल्लाह। आप कहाँ से आए हैं? पहली मर्तबा आपको देख रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं? आया हूं। सवाल पूछेंगे कहाँ से आए हैं तो मैं कहूँगा जी मैं तो कामों की सिटी से आया हूँ। जवाब मिल गया। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे पास नूर आया है। वाह। सवाल है वे कित्थों आया है? सुभान अल्लाह। ये नूर कहाँ से आया है? ये मैंने वंड निकालनी है सारी, सुनिएगा। अगर आप कहें ये नूर अरब से आया है, अरब शरीफ से आया है, मैं कहूँगा ये नूर अरब से नहीं आया। अगर आप कहें अजम से आया है, मैं कहूँगा अजम से भी नहीं आया। अगर आप कहें ये नूर जो है आसमान से आया है, मैं कहूँगा आसमान से भी नहीं आया। अगर आप कहें ये ज़मीन से आया है, मैं कहूँगा ज़मीन से भी नहीं आया है। आप कहें मशरिक़ व मग़रिब से आया है, मैं कहूँगा नहीं आया। आप कहें जुनूब व शुमाल से आया है, मैं कहूँगा जुनूब व शुमाल से भी नहीं आया है। आप कहें जी चाँद से आया है, मैं कहूँगा चाँद से भी नहीं आया है। तो आप कहोगे हज़रत साहब पूरी कायनात खोल दी है, तो फिर ये नूर आया है तो कहाँ से आया है? ये अरब से नहीं आया है, ये अजम से नहीं आया है, ये ज़मीन से नहीं आया है, ये आसमान से नहीं आया है। तो ये आने वाला नूर जो है फिर कहां से आया है? मैं कहता हूं ठहरो, रुक जाओ, जरा बात को समझो। ये आने वाला नूर जो है वो कहां से आया है? तवज्जो चाहता हूं, मेरे लफ्जों की तरफ तवज्जो फरमाइएगा, ये तवज्जो फरमाइएगा। ये आने वाला नूर जो है कहां से आया है? मैं कहता मुझे ना पूछो, कुरान से पूछो। कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि मिनल्लाहि मिनल्लाहि। ये जो लफ्ज है मिनल्लाह है, ये हमें हमारे सवाल का जवाब दे रहे हैं। मिनल्लाह है। खुद आयत नूर में ये जो लफ्ज हैं मिनल्लाही, ये अल्फाज, ये जो लफ्ज हैं ये हमें हमारे सवाल का जवाब दे रहे हैं। ये नूर कहाँ से आया है? आयत कहती है ये नूर इधर उधर से नहीं आया है, ये तो अल्लाह की तरफ से आया है। बोलो कहाँ से आया है? अल्लाह की तरफ से आया है। बोलो कहाँ से आया है?
اللہ کی طرف سے آیا ہے. بات کو سمجھیے گا. جب کوئی چیز جہاں سے آتی ہے نا، جو چیز جہاں سے آتی ہے، جو چیز جہاں سے آتی ہے، بار بار اعلان کر رہا ہوں بھائی، جو چیز جہاں سے آتی ہے وہاں کی صفات لے کر آتی ہے، وہاں کی صفات لے کے آتی ہے. ہوا برف کی طرف سے آئے تو ٹھنڈی ہو کر آتی ہے، ہوا آگ کی طرف سے آئے تو گرم ہو کے آتی ہے، ہوا پھولوں کی طرف سے آئے تو خوشبودار ہو کر آتی ہے، ہوا گندگی کی طرف سے آئے تو بدبودار ہو کر آتی ہے. پتا چلا جو چیز جہاں سے آتی ہے وہاں کی صفات لے کر آتی ہے. تو اب ایمانداری سے بتانا یہ نور کہاں سے آیا ہے؟ بولو بولو کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو بھائی جب یہ نور اللہ کی طرف سے آیا ہے خالی نہیں آیا. سبحان اللہ. اگر کوئی کہتا خالی ہے تو ثابت کر کے دکھائے. یہ نور خالی نہیں آیا، پتہ کیا لے کے آیا ہے؟ خدائی صفات لے کر آیا ہے. کیا لے کے آیا ہے؟ آخری بات ہے، توجہ چاہتا ہوں. خدائی صفات لے کر آیا ہے. میں دلیل دینا چاہتا ہوں قرآن سے. قرآن سے باتیں سمجھے. مجھے یہ بتائیں رحیم کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. رؤوف کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. عزیز کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. یہ تینوں صفتیں رب کریم کی ہے. ایک ہی آیت میں یہ تینوں صفتیں رب نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی ہیں. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا لوگو تمہارے پاس جو ہم نے اپنا رسول بھیجا ہے یہ خالی نہیں آیا ہے، ہماری صفات لے کر آیا ہے. یہ عزیز بن کے بھی آیا ہے، یہ رؤوف بن کے بھی آیا ہے، یہ رحیم بن کے بھی آیا ہے. پتا چلا یہ نور اللہ کی طرف سے آیا ہے، خالی نہیں آیا ہے، خالی نہیں آیا ہے. تو بس اس پوری گفتگو کو میں سمیٹنے لگا ہوں. بس آپ کی توجہ چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا اور فرق دیکھیے گا. فرق دیکھیے گا. دیکھیں اللہ رحیم ہے، اس کو کسی نے رحیم نہیں بنایا ہے. تیرا میرا نبی رحیم ہے، اللہ نے بنایا ہے. اللہ رؤوف ہے، اللہ کو رؤوف کسی نے نہیں بنایا ہے. لیکن تیرے میرے نبی کو رؤوف کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. اللہ عزیز ہے، اللہ کو عزیز کسی نے نہیں بنایا ہے. لیکن تیرے میرے نبی کو عزیز کس نے بنایا ہے؟ بولو بولو اللہ نے بنایا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اللہ رحیم ہے، اس نے اپنے نبی کو رحیم بنایا ہے. اللہ کریم ہے، اس نے اپنے نبی کو کریم بنایا ہے. اللہ رؤوف ہے، اس نے اپنے نبی کو رؤوف بنایا ہے. اللہ عزیز ہے، اس نے اپنے نبی کو عزیز بنایا ہے. اللہ مختار کل ہے، اس نے اپنے نبی کو مختار کل بنایا ہے. اللہ مشکل کشا ہے، اس نے اپنے نبی کو مشکل کشا بنایا ہے. اللہ غیب داں ہے، اس نے اپنے نبی کو غیب داں بنایا ہے. سب سے بڑھ کر یہ جملہ سماعت فرما لے، اللہ نور ہے، اللہ نور ہے، اس نے اپنے نبی کو بھی نور بنایا ہے. سبحان اللہ. اس نے اپنے نبی کو بھی اسی نور کے آنے کا تو جشن منا رہے ہیں. سبحان اللہ. اسی کے نور کے آنے کا جشن تو منا رہے ہیں. حضرات عزیز وقار، آپ کے سامنے جو میں نے گفتگو کی ہے وہ یہ ہے، میں نے ابھی تک کوئی واقعہ کو قصہ آپ کے سامنے بیان نہیں کیا. صرف قرآن کی آیات سے آپ کے سامنے یہ بات میں نے رکھی ہے، جب اللہ کسی کو بھیجتا ہے تو بڑا باکمال بنا کر بھیجتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، سب سے بڑے رسول کو اس نے بھیجا، بڑا باکمال بنا کر، بے مثل بے مثال بنا کر جو ہے وہ بھیجا ہے. آج اسی محبوب کی یاد میں، اسی محبوب کے ذکر میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ کا اہتمام کرنا، آپ کا بیٹھنا، اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.